Hello students. So we started lesson number 8, that is the cell. Today we will be discussing the fourth part of this lesson, that is the structure of a prokaryotic cell, part 2. In part 1 we discussed about the outer covering of a prokaryotic cell, which may contain 1, 2 or 3 layers, and from outside these layers are the capsule, the cell wall and the cytoplasmic membrane or the plasma membrane. Now let us see what remains if we remove the outer envelope of this cell. So I am removing these 3 layers from this cell. So what remains after removing these 3 layers is actually the cytoplasm of the cell. The cytoplasm contains all the materials which are present inside a prokaryotic cell. Now let us see what materials are present in the cytoplasm, or what is the composition of cytoplasm of a prokaryotic cell. So the cytoplasm is actually a jelly-like substance, and it is mainly made up of water, enzymes, salts, parts of the cell like DNA, ribosomes, mesosome, which we will be discussing in this lecture, and various organic molecules which are required for the functioning of the cell. So साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा लिक्विड है और इसमें सेल के सारे पार्ट्स प्रेजेंट हैं. अब देखें कौन कौन से पार्ट्स साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल we'll discuss about the genetic material of this cell. The genetic material is actually a material present inside the cell which contains all the information about the cell. ये ज़्यादातर डीएनए होता है. डीएनए का मतलब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो सेल्स के अंदर मिलता है और इसके पास सेल की सारी इन्फॉर्मेशन है कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा होगा, सेल कितनी देर तक ज़िंदा रहेगा, क्या काम करेगा, और इस डीएनए की कॉपी जिस भी सेल में जाएगी ये सारी इन्फॉर्मेशन उस नए सेल को भी मिलेगी. So the genetic material of a prokaryotic cell is DNA, and this DNA is packed along with proteins to make a structure known as chromosome. So now let us take out this chromosome and see what is present in this chromosome. So as you can see, the prokaryotic chromosome has only one DNA which is circular in shape. So it is single circular DNA which is packed by coiling and supercoiling with the help of some enzymes and arranged into a small space compactly. So thousands of folds के बाद डीएनए को सेल के अंदर कॉम्पैक्टली अरेंज किया जाता है और साइटोप्लाज्म की वो जगह जहाँ पर ये क्रोमोसोम प्रेजेंट है, दैट रीजन इज़ नोन एज न्यूक्लियोइड रीजन. This DNA is not covered by any membrane, so it is present directly in the cytoplasm. Now, in addition to this chromosomal DNA, there is another extra chromosomal DNA which is known as plasmid. तो जो ये जेनेटिक मटेरियल मैंने आपको बताया उसके अलावा भी थोड़ा सा डीएनए प्रेजेंट है. दैट सर्कुलर डीएनए इज नोन एज plasmid. This plasmid has some important information for the cell about which we'll discuss later on. Now, in addition to chromosome and plasmid, you can see some more materials in the cell. Now let us discuss about them. So now let us enlarge this part and see what is it. So after enlarging it, you can see that this structure is actually a ribosome. तो राइबोसोम
प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट है, ये यूकैरियोटिक सेल्स में भी होता है, बट दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है. आई एम डिस्कसिंग अबाउट द राइबोसोम ऑफ अ प्रोकैरियोटिक सेल. तो राइबोसोम एक ऐसा ऑर्गेनल है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है सेल के अंदर विच हेल्प्स द सेल टू मेक प्रोटीन्स. So ribosomes are actually protein making machinery of the cell. तो ये प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है. अब देखें कि इस राइबोसोम का स्ट्रक्चर कैसा है. द प्रोकैरियोटिक राइबोसोम इज 70S type of ribosome. Now the unit S used here is actually Swedberg unit. Swedberg or Theodor Swedberg was a scientist who invented the technique of ultracentrifugation. Ultracentrifugation actually means rotating a mixture at a very high speed. मतलब किसी मिक्सचर को बहुत स्पीड पर रोटेट करना, स्पिन करना. किसी मटेरियल को टेस्ट ट्यूब्स में डालकर इस मशीन के अंदर रख दिया जाता है. फिर इस मशीन को बहुत हाई स्पीड पे रोटेट किया जाता है. रोटेशन के कारण टेस्ट ट्यूब्स के अंदर जो मटेरियल है वो अपनी डेंसिटी के हिसाब से सेटल डाउन या सेडिमेंट हो जाता है, मतलब नीचे बैठ जाता है. सो एक्चुअली दिस Swedberg इज़ अ यूनिट ऑफ टाइम एंड 1 Swedberg इज़ इक्वल टू 10⁻⁻13 सेकेंड्स. मतलब कि इससे ये अंदाज़ा होता है कि किसी मटेरियल को एक पर्टिकुलर स्पीड पे कितनी देर रोटेट करने के बाद वो मटेरियल नीचे सेटल डाउन हो जाएगा. तो इस हिसाब से 70S राइबोसोम का मतलब कि ये 70 इंटू 10⁻⁻13 सेकेंड्स तक रोटेट करने के बाद नीचे सेटल डाउन होती है. नाउ इफ़ वी लुक at the 70S ribosome of a prokaryote, we see that it is actually made up of 2 subunits. One is a larger subunit which is known as the 50S subunit, and the other one is a smaller subunit which is known as the 30S subunit. यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि 30S और 50S इनके सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट हैं. दैट मीन्स द टाइम दे टेक टू सेडिमेंट ड्यूरिंग अल्ट्रा सेंट्रीफिकेशन व्हेन दे आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर. पर अगर इन दोनों को एक साथ जोड़कर कंप्लीट राइबोसोम बना दिया जाए तो उस कंप्लीट राइबोसोम का सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट 30 + 50 यानी 80S नहीं होगा, वो 70S होगा अकॉर्डिंग टू द टाइम टेकन बाय द कंप्लीट राइबोसोम टू सेटल डाउन ड्यूरिंग अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन. द राइबोसोम इज एक्चुअली मेड अप ऑफ RNA and proteins. The RNA present in the ribosome is known as ribosomal RNA or rRNA. There are many types of rRNA according to the sedimentation coefficient, that is the time taken by them to settle down during ultracentrifugation. For example, 16S rRNA. Each subunit has a fixed number and type of RNA and a fixed number of proteins. Now, when we look at the structure of a prokaryotic cell, we can see some structures which are actually the ingrowth of plasma membrane. इनग्रोथ का मतलब अंदर की तरफ होने वाली ग्रोथ. ये कुछ वैसे ही है जैसे जब आप किसी फ्रिज को खोलें तो फ्रिज की फ्रीज़र कंपार्टमेंट में आपको छत से कुछ बर्फ़ के टुकड़े अंदर की तरफ लटकते हुए दिखाई देते हैं. ठीक ऐसे ही अगर किसी प्रोकैरियोटिक सेल को अंदर से देखा जाए तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसकी छत होगी और कहीं कहीं पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ लटक रही होगी और उसे हम कहेंगे इन ग्रोथ ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन.
So such a ingrowth of plasma membrane is the mesosome. Mesosome is a ingrowth of plasma membrane which is made up of lamellae, tubules and vesicles. Now let us discuss about the function of mesosome. Mesosome actually helps in increasing the surface area of plasma membrane. मतलब अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लेन होती तो उसका सरफेस एरिया कम होता, पर जहाँ जहाँ से प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ ग्रो कर रही है वहाँ उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया. एंड if this plasma membrane has some enzymes like respiratory enzymes, then the number of these enzymes also increases. So mesosomes help in increasing the surface area of the plasma membrane. Second function of mesosome is to help in distribution of duplicated DNA or replicated DNA during सेल डिवीजन. मतलब जब सेल ने डिवाइड होना होता है तो वह पहले अपने डीएनए की कॉपी बनाता है, फिर ये डीएनए और उसकी कॉपी मीजोसोम के साथ अटैच होते हैं और उसके बाद ये सेल दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है. दैट मीन्स मीजोसोम गिव्स द साइट ऑफ अटैचमेंट टू द डीएनए एंड इट्स कॉपी. Now another ingrowth of plasma membrane which you can see here are the photosynthetic membranes. तो ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अंदर की तरफ ग्रोथ है. और अगर बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक है, मतलब अगर वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, तो इन मेम्ब्रेन्स में कुछ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जैसे कि बैक्टीरियोक्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जिसके हेल्प से ये बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करता है. सच फोटोसिंथेटिक मेम्ब्रेन्स आर नोन एज क्रोमैटोफोर्स. तो क्रोमैटोफोर्स के अंदर एक्चुअली वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनग्रोथ है और इसके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स फिल्ड होती हैं. ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच्ड भी रह सकती हैं या कई बार ये डिटैच होकर साइटोप्लाज्म के अंदर भी पहुंच जाती हैं. Another structure which is present in some of the bacterial cells is the flagellum. सिंगुलर को फ्लैजेलम कहेंगे, प्लूरल को फ्लैजेला कहेंगे. तो फ्लैजेलम बैक्टीरियल सेल्स में प्रेजेंट एक स्ट्रक्चर है विच हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल्स. ये सभी बैक्टीरिया में नहीं मिलेगा, किसी किसी में ही मिलेगा. Now let us look at the structure of a flagellum. The flagellum of a prokaryotic cell is made up of a long tail-like structure which is known as filament. The filament is made up of a protein known as flagellin protein which is round globular protein. पूरा filament ऐसे ही proteins का बना हुआ है. अब प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के फिलामेंट में कुछ डिफरेंस है. प्रोकैरियोटिक सेल का फिलामेंट बाहर किसी कवरिंग से कवर्ड नहीं है, जबकि यूकैरियोटिक सेल के फिलामेंट के बाहर एक एक्स्ट्रा कवरिंग होती है. नाउ दिस इज़ द हुक विच इज़ मेड अप ऑफ अ स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन. इट अटैचेज द फिलामेंट टू द बेसल बॉडी. बेसल बॉडी भी एक स्पेशल टाइप के प्रोटीन का बना है. ये सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है. इट इज़ मेड अप ऑफ रॉड्स एंड रिंग्स. रिंग्स की गिनती अलग अलग है. तो ये सेल वॉल में 2 रिंग दिख रहे हैं आपको यहाँ और सेल मेम्ब्रेन में 2 रिंग दिख रहे हैं. लेकिन अगर ये बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है तो 4 रिंग्स होंगे, जबकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में सिर्फ 2 ही रिंग्स होंगे जो कि सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होंगे. Now you can see some hair-like structures which are present in some of the bacteria. Now these hair-like outgrowths are known as pili and fimbriae. So both pili and fimbriae, they are hair-like outgrowths and they are found on surface of some bacterial cells. सभी बैक्टीरिया में नहीं मिलेंगे, किसी किसी में ही मिलेंगे. ज़्यादातर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में मिलते हैं, बट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में भी मिल सकते हैं.
सो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ दीज हेयर लाइक आउटग्रोथ्स? उससे पहले दोनों में फ़र्क क्या है? पिलाई आर समवॉट लॉन्गर इन लेंथ, पिलाई हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं बट दे आर लॉन्गर, एंड फिम्ब्रिए आर शॉर्टर इन लेंथ, but both of them they help in attachment of the bacterial cell to a surface. किसी भी सरफेस जैसे कि कोई सेल या कोई और सतह से अटैच होने में पिलाई और फिम्ब्रिए हेल्प करते हैं. पिलाई हैज़ one more function, and that is the exchange of genetic material between two bacterial cells. तो एक बैक्टीरियल सेल और दूसरे बैक्टीरियल सेल के बीच में ये ब्रिज की तरह काम करते हैं, जिसके थ्रू दोनों के बीच में डीएनए का एक्सचेंज हो सकता है. सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोकैरियोटिक सेल. इन द नेक्स्ट लेक्चर we will be discussing the structure of a eukaryotic cell.